May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Please, sir. Thank you, sir. Please tell something about your own self. सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव 3 डीएम जिला श्री गंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में शारदा कॉलेज शारदा कला विज्ञान महाविद्यालय महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के पद पर चयनित हुआ था। उसके बाद में सर मैंने ईयूएल लेके और दोबारा से मेंस क्लियर किया है और आज उसी की बदौलत में आज आपके सामने। I can see 2015 you finished graduation. So after that, did you continue your preparation only? Yes, sir. After my graduation, I used to work with my family in our agriculture and all. Along with this work, I used to prepare for UPSC, and that's why I take 3 to 4 years to crack. Tell me something about your family. Sir, my father is a farmer, and my mother is also involved in agriculture as well as household works. And I have 3 sisters. One sister is a homemaker. One sister is a teacher and one sister is agriculture supervisor. Okay. So yes, heavily into agriculture. Yes, and sir. What is the kind of a crop pattern which is there in your area? Sir, in Rabi season we used to grow wheat, mustard and grams, and in Kharif season we used to grow guar and cotton and moong. Any problem with the water related, because you have canal there? Yes, sir. Gang canal is there, and since you are Anupgarh and all that area, so there is the Anupgarh Shakha is also there. Yes, so water, there is no issue? Yes, sir. In my area there is the issue of saline water because salinity. Yes, sir. How do you take care of salinity in your area? Sir, we used to put gypsum in our field so that we can get rid of this problem. Gypsum is used for? Yes, sir. Basically, but gypsum will make it's taken out, you have to drain it out, then only it will be useful, otherwise it will be... Yes, sir. Okay. Now tell me something, I can see you started with a science background. Yes, sir. And very high, good marks, 92%. Yes, sir. But then why did you decide to switch over to humanities? Actually, sir, I took an admission in agriculture stream. I want to take admission in agriculture stream, but there are some family issues, so that I cannot continue with agriculture stream. So that's why I preferred humanities. Tell me, you are Anupgarh is almost a border area. Yes, almost sir. A border area. Are there any issues of infiltration? Because there had been reported at least some Rohingyas and Bangladeshis moving from that side to Sindh and all those things. Is there a problem of that kind of a thing there? सर मेरे एरिया में जनरली सर ऐसा सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत पीसफुल बॉर्डर है और बाकी सर बीएसएफ के पेट्रोलिंग होती है, बहुत अच्छी चेक पोस्ट बनी हुई है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है सर, तो इन्फिल्ट्रेशन की उतनी समस्या नहीं है सर। अच्छा, आपने देखा आप खो खो भी अच्छा खेलते थे, हैं? तो आप ये बताइए कि खो खो के लिए आप प्रिपेयर कैसे करते थे? सर मैं खो खो में कैप्टन था, तो मेरा काम होता था कि हम सब सुबह सुबह जल्दी उठाना, और खो खो में सर बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे कॉलेज में एक ग्राउंड था और खो खो में सर जनरली कोई बड़े ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हम लोग उसके लिए सर काफ़ी सारी रनिंग और दंड बैठक ये सब मैं करता था। साथ में हमारे जो पीटीआई टीचर थे वो हमें बहुत हेल्प करते थे सर। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते थे। साथ में जो भी कोऑर्डिनेशन होता था या जो भी हमारे जो मतलब गेस्चर होते थे कि किस तरीके से फेक खो करना है या फिर किस तरीके से डोज देनी है, तो वो सब हम मतलब गेस्चर। कितने दिन प्रिपेयर करते थे सर? कॉलेज फेस्ट से मतलब जनरली हम लोग खेलते थे, कॉलेज में हमारे चलता था, मतलब मेन गेम्स में था सर ये। तो जनरली कॉलेज फेस्ट से 1.5-2 महीने पहले तक थोड़ी इंटेंस प्रिपरेशन होती थी। एक बात बताइए, जो कोरोना वायरस बहुत ही द होल वर्ल्ड इज नाउ अफेक्टेड बाय इट, हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया? नॉट ओनली मेडिकल, देयर मे बी अदर एरियाज वेयर इट मे अफेक्ट अस। तो कैसे कोरोना वायरस, कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि क्या इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? सर फर्स्टली तो जो मेडिकल इश्यूज हैं जैसा कि हेल्थ इफेक्ट होगी। दूसरा सर जो चाइना में जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस फैलने की वजह से जो बहुत सारी कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स बंद कर दिए हैं।
उसके अलावा सर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है जो रॉ मटेरियल और जो भी कच्चे माल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो इसका सीधा सा असर सर हमारे ट्रेड में पड़ेगा, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है जो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदती है उन पर भी फर्क पड़ेगा सर। बट इज इट नॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो साइमल्टेनियसली? कोई अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं? सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। हमारे डोमेस्टिक जो हम जो पक्का माल जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे घरेलू उद्योग है तो वो जो कच्चा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बजाय हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाए तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है सर। अपॉर्चुनिटी, जी सर। सो व्हाट आर द एरियाज यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बेस्ड ऑन दिस? सर बेसिकली जो असेंबलिंग है, जो आईटी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी असेंबलिंग पे हम बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सर जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, उस पर हम घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर सकते हैं सर। क्योंकि अगर आप नई इंडस्ट्री लगाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में उसका मैं पूछना चाहता था ना, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, दैट्स अ गुड आइडिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, दैट कैन फर्दर बी बूस्टेड अप। ओके, इसका कोई आपने कुछ एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह किया हुआ है? सॉरी सर, एनालिसिस तो मैंने अभी तक नहीं किया सर इसका, लेकिन एक जनरल आइडिया पे मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है सर। तो जो भी वहाँ पे जैसे चाइना में अभी एज्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ तो लॉन्ग टर्म है, और अभी जैसे कोरोना वायरस पे इंडस्ट्रीज को जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ है तो इंडिया एक अच्छे निवेश हब के रूप में प्रस्तुत कर सकता है खुद को। ऑल्टरनेटिव। जी सर। योर क्वेश्चन सर। ओके रवि, यस सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर। सो टेल मी हाउ योर नॉलेज ऑफ हिंदी लिटरेचर, हाउ इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन? सर पहली तो चीज़ ये है कि साहित्य से सर एक जो यंत्रीकरण है या संवेदना का विकास है, यंत्रीकरण के खिलाफ संवेदना का विकास होता है। जैसे सर जो सिविल सेवा है उसके आधारभूत मूल्यों में संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मूल्य है। साहित्य से हम पढ़ते हैं तो हम जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो दीन वर्ग है, हम उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील महसूस करते हैं। जैसे सर प्रेमचंद का उपन्यास अगर गोदान अगर कोई भी पढ़ता है तो पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद में वो वैसा नहीं रहता, मतलब उसमें गुणात्मक अंतर महसूस करता है वो किसानों के प्रति। उसी प्रकार जो दलित वर्ग के प्रति लिखी गई कहानी है, जो ओम प्रकाश नैमिष राय या फिर सूरजपाल चौहान है, इनके द्वारा लिखी गई कहानियों पे हम एक दलित वर्ग के प्रति एक संवेदनशील महसूस करते हैं। दूसरा, साहित्य में कुछ ऐसे साहित्य हैं जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सर फणीश्वरनाथ रेणु का मैलान है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो पूर्णिया का एरिया है बिहार में, उसके आसपास के जो भी बोलियां हैं, जो भी गीत है, जो भी लोगों की किस प्रकार गांव के लोग सोचते हैं, तो उसके बारे में एक जनरल सोच डेवलप हो जाती है। और साहित्य में अगर हम एक अच्छा ब्यूरोक्रेट अगर लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली सर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। सो गिव मी अ लिंकेज, इफ यू आर posted as district magistrate in Ganganagar, tell me how Hindi literature will be used while working as district magistrate. सर गंगानगर में एक बड़ी पॉपुलेशन, precise linkage, your knowledge of Hindi literature and that you are using as administrator. यस सर। सर सबसे बड़ी चीज़ गंगानगर में सर जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 36% है सर वो, तो उनके बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हिंदी लिटरेचर में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है कि किस प्रकार वो समस्याएं फेस करते हैं। जैसे कई कहानियां पढ़ी है, कुछ नॉवेल्स में उनके बारे में देखने को मिलता है, जैसे सर महाभोज। Stick to the point. जी सर। Linkages. How your knowledge of Hindi literature, how do you propose to apply in administration? 1, 2, 3. सर फर्स्टली मैं लोगों के बीच जाके लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करूँगा सर, कि किस तरीके से लोगों को समझाना है। That's not Hindi literature, is it? It's a local dialect. यस सर। सर हिंदी लिटरेचर में बहुत सारी डायलेक्ट्स भी हैं, जैसे हिंदी एक भाषा है। Okay. जी सर। In this country, frequently there are demand that farmers' loans should be waived off. यस सर। And you are from a farmer's family. I want your opinion about this. Sir, my opinion is as a short-term measure, it can be justified, but for long-term wait, like it should not be a paracetamol for fever. There are some other measures we should take to get rid of this problem. Your medium of interview is it Hindi?
Yes, sir. So you better answer in Hindi so that you are better preparing for the interview, final. Okay, sir. Okay. So you want to tell me something more on this? जी सर. सर जो फार्म लोन वेवर है, जो एग्रीकल्चर है हमारे भारत में, वो सर एक आर्थिक गतिविधि नहीं है. वो समाज से, संस्कृति से, इन सब से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है. जैसे सर गांव में जिसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, उसकी रेपुटेशन भी उतनी ज़्यादा है. किसी ने अगर अपनी ज़मीन बेच दी तो उसको लोग तिरस्कार की नज़र से देखते हैं कि इसने अपनी ज़मीन बेच दी. तो एग्रीकल्चर का डायरेक्ट लिंक व्यक्ति के रेपुटेशन से है. तो अगर एग्रीकल्चर इतना इम्पैक्ट भारत में डाल दिया तो लोन वेवर एक तत्कालिक कदम के रूप में, जो उत्पीड़ित किसान है या जो दबे हुए किसान है, तत्कालिक कदम के रूप में सही हो सकता है. लेकिन सर लॉन्ग टर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्रीकल्चर में अप्लाई करनी है, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब जो पीएम किसान योजना है सर, वो भी इसके एक फेज में है कि जो लोन वेवर के बजाय किसानों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो है. उसके अलावा सर एग्रीकल्चर एक होलिस्टिक है जिसमें बीज से लेके बाजार तक हमें बहुत सारे काम हम कर भी रहे हैं और आगे हम करेंगे भी. जैसे सर मार्केट रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एपीएमसी मॉडल एपीएमसी एक्ट है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट है. ये सभी हम रिफॉर्म कर रहे हैं. उसके अलावा एक्सटेंशन सर्विसेज को हमें और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा ताकि. What you are talking is agricultural reforms. Yes, sir. The question is only on farmers' loan. Yes, sir. सर जो फार्मर्स लोन के वेवर के बजाय लॉन्ग टर्म में जो हम कदम उठा सकते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. Okay. जी सर. Third question is Chandrayaan-2 mission. Yes, sir. The ISRO says that it was 98% successful. Do you agree with this assessment? Yes, sir, I agree with this assessment. On what basis do you say that it is 98% successful? सर कुछ बेसिस हैं. जैसे कि सर हम जो लेंडर हैं, सबसे पहले तो सबसे कम कॉस्ट में हम इसको चांद तक पहुंचा पाए. सर ठीक है, मतलब कुछ रीजंस की वजह से हम इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए. लेकिन सर वो बिल्कुल एंड में जो हुआ उसी को मैं 2% एरर मार रहा हूँ. बाकी जो उसका सर जो लेंडर है वो नहीं कर पाए. और उसके अलावा अब सॉरी सर मैं नाम भूल रहा हूँ जो चांद के बाहर परिक्रमा करता है, तो वो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया. 7 साल तक हमें मून की इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी. तो सर एक तरीके से 2% का मैं एरर इसमें मानता हूँ. Last question. In case you get an opportunity to work as district magistrate in your city, Ganganagar, Yes, sir. what are the 5 things that you will take up as a priority for next 3 months, first 3 months of your posting? सर सबसे पहले तो मैं एक बैठक बुलाना पसंद करूंगा जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, टीचर्स और कॉलेज के युवा जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रेसिडेंशियल चुनाव में जो अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मिलकर मैं सारी समस्याओं का एक लेखा जोखा रखूंगा. सेकंड नंबर पे मेरी प्रायोरिटीज होगी, एक तो वीमेन एजुकेशन होगी सर. 59% वुमेन लिटरेट है. थर्ड सर जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, मैं उस पर एक जायजा लूंगा ताकि किसानों को प्रेरित कर सकूं कि वो वाटर की जो कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसको अपनाएं और ज़्यादा एक्सेस में वाटर ना डालें. थर्ड सर मैं एससी के लिए जो भी योजनाएं चल रही है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करूंगा. फोर्थ सर मेरे जो जिले में सर जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा खराब है. 46% जो बच्चे होते हैं वो अंडर वेट होते हैं सर. तो जैसे हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट चलाया, मैं उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की बची हुई ज़मीन है और सरकारी स्कूलों में कुछ ज़मीन है, वहाँ पे किचन गार्डनिंग या इस टाइप की कुछ सब्जियां वगैरह उगाई जाए ताकि जो बच्चों में न्यूट्रिशन की समस्या है उसको खत्म किया जा सके. Ravi, you took English literature in your graduation, right? Yes. Okay. There's a saying, success has many fathers, but failure is an orphan. What do you understand by this? Success has many fathers, but failure is an orphan. मैम जो मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे आ जाते हैं कि मेरा भी इसमें योगदान है, मेरा भी इसमें योगदान है. जैसे कि कोई भी मान लो यूपीएससी में भी कोई सेलेक्ट हो रहा है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने इसको ये बताया था, मैंने इसको ये बताया था. लेकिन अगर कोई फेल होता है तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता. सब बोलते हैं कि ये सिर्फ अपने कारण से फेल हुआ है. तो मैं ये समझ रहा हूँ. Okay. You got secured first rank in quiz competition conducted by SCRT. So you like quizzing? Yes, ma'am. थोड़ा सा rapid fire हो जाए? जी मैम. Okay. What is the name given to coronavirus by WHO? कोविड. Incomplete. कोरोना वायरस डिजीज.
Completed. It's incomplete. What is the original name of Santa Claus? Sorry ma'am, I don't know. RT came into force in which year? 2009. Who wrote Happy for No Reason? Sorry ma'am. One adjective that describes you the most. Sorry ma'am. One adjective, एक विशेषण that describes you the most. Shining. Shining. Yes ma'am. Okay. Your hobby is kitchen gardening, speaking in various dialects, terrace gardening and all. Yes ma'am. Suppose you're selected and you're given education. Okay? And we have SUPW. What is the full form of SUPW? Sorry ma'am, I don't know. Okay. SUPW is, it is actually for productive work. Some service, the productive work, socially useful productive work. That is a complete full form. Socially useful productive work. बच्चे कहते हैं कि some useful periods wasted, but it's a productive work. तो आप कैसे श्रमदान या टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग को प्रमोट करेंगे अगर आपको एजुकेशन मिलता है? मैडम एक सीधा सा इसके बारे में मैंने सोचा था कि जो स्कूल्स हैं उसमें लैंड बची होती है स्पोर्ट्स के लिए, उसका एक छोटा हिस्सा है वहाँ पे। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि बच्चों को सब्जेक्ट लाए, उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बच्चों को किचन गार्डनिंग सिखाई जाए। जैसे उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि किचन गार्डनिंग में बेसिकली हम देसी बीजों का प्रयोग करते हैं कि जो मार्केट से बीज हम जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको नहीं खरीदते और जो बीज बच रहे हैं उन्हें को अगले सीजन में दोबारा बोते हैं। तो बच्चों में जैसे सर चाइना में मैडम चाइना में एक प्रोजेक्ट चला था, उसमें बच्चों को टेरेस गार्डनिंग सिखाते थे। तो एक तो उनकी हेल्थ अच्छी होती है जो फिजिकल वर्क करते हैं, दूसरा एक अच्छी अगर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का उनको हम सिखाएं तो एक गरीब बच्चा जो न्यूट्रिशन से है तो एक स्कूल में जो पीटीआई टीचर है या फिर जो क्लास के स्कूल टीचर है उनकी एक जिम्मेदारी तय की जाए और मेरे हिसाब से एक इंक्रीमेंट में भी इसको ऐड किया जाए कि कितने बच्चों ने इस चीज़ को सीखा है और कितने बच्चे किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। टीचर्स जो उनके उस पीरियड्स को लेंगे उनको भी तो हम सक्षम करेंगे। हाउ विल वी एम्पावर देम? मैम इसके लिए टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है उसमें बड़े लेवल पे जो ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाए टीचर्स को, तो इस तरीके से एम्पावर होंगे। ओके। यस मैम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच केम इन 2019 उसमें बहुत कॉन्टेंशियस था। ये कहा गया था कि सारे लेवल्स में संस्कृत होने चाहिए या जो हिंदी है वो कंपल्सरी लैंग्वेज होगा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। तो आपके क्या विचार है? मैम मेरा विचार इसमें थोड़ा सा इसके पक्ष में कम है कि जो हिंदी है कोई भी लैंग्वेज हम किसी पे थोप नहीं सकते। जैसे जितनी भी लैंग्वेज है भारत में 22वीं अनुसूची में, मेरी नज़र में वो सारी लैंग्वेज एक समान है। मैं किसी भी व्यक्ति पे कोई भी लैंग्वेज थोपने का मतलब विरोध करता हूँ। तो अगर इसके बजाय जो त्रिभाषा फॉर्मूला था वो सबसे अच्छा फॉर्मूला था कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें या तो साउथ की लैंग्वेज सिखाई जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट की कोई लैंग्वेज सिखाई जाए और साउथ के जो स्टेट्स हैं वो अपने आप इस चीज़ के लिए मतलब प्रोत्साहित होंगे कि वो हिंदी को सिखाएं। किसी चीज़ को थोपने के बजाय अगर हम अपने आप कैसे कोई प्रोत्साहित होगा? आपको भी तो किसी ने प्रेरणा दी होगी, किसी ने एनकरेज किया होगा। प्रोत्साहन तो बाहर से आएगा ना, आप खुद को एनकरेज नहीं कर पाओगे, आप मोटिवेट हो सकते हो। तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट आपको मिलता है तो आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? सब अपने अगर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के पीछे पड़ते हैं तो कभी कभी तो थोपना पड़ता है। घर में भी तो थोपा जाता है ना, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, माँ बाप थोपते हैं। तो अगर आपका गोल है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है एंड उसको सीखना है तो हाउ विल यू डू इट? मैडम माफ़ कीजिए लेकिन फर्स्ट थिंग तो ये है कि भारत में राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हिंदी के बजाय जो मैं अगर 22 भाषाओं को ही राष्ट्रभाषा बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी राजभाषा के रूप में डेवलप करने का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद में 1967 में अमेंडमेंट करके ये बता दिया कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो अगर संकल्प पारित करेंगे तो उसके बाद में ही राजभाषा के रूप में हिंदी को आगे जारी रखा जा सकेगा। थोपने की बात मैडम ये है कि हमारा संविधान भी भाषाओं को थोपने की बात नहीं करता। हमारे संविधान के आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो हमें थोपने के बजाय मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए। और मैडम कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं
तो उसके सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, एक तो बहुत सारी रिसर्च में ये बताया है कि उससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। सेकेंड थिंग, हम जो दूसरी लैंग्वेज का कल्चर है उससे हम वाकिफ होते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है कि अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट साउथ इंडिया की लैंग्वेज सीखें तो साउथ इंडियन स्टेट अगर हिंदी सीखें तो एक नेशनल इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैम एक तरीके से ये प्रोत्साहित करना ही होगा, क्योंकि थोपना तो अगर मातृभाषा में देंगे और बाद में 10th 12th के स्तर पर अगर हम दूसरी भाषाओं का नॉलेज सिखाएंगे तो ये एक अच्छा कदम होगा। लास्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को एक नाम दिया गया है, डैश लैंग्वेजेस, द्रविड़ भाषा। ओके, और अभी एक आपने पॉलिटिकल साइंस बीए में लिया था। Yes, sir. इंग्लिश लिटरेचर में समझ सकता हूँ कारणों से आपने कंटिन्यू नहीं किया होगा, पर जब बीए पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा तो व्हाई नॉट यू कंटिन्यू इट इन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी? सर थोड़ा लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो लेकिन भाषा एक बड़ा मुद्दा था कि इंग्लिश में इतना कंफर्ट नहीं था, तो इंग्लिश लिटरेचर के बजाय हिंदी लिटरेचर लिया। और हिंदी लिटरेचर में भी बेसिकली वही चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिया? सर पॉलिटिकल साइंस के पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि मैंने कुछ सीनियर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मेरे को लिटरेचर सब्जेक्ट के बारे में बताया, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो सर यूपीएससी में भी कुछ सीनियर्स ने बताया था कि लिटरेचर अगर सब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो इस बेस पे सर मैंने हिंदी लिटरेचर लिया। अच्छा, व्हाट इज साइंस इन पॉलिटिकल साइंस? जैसे मैंने देखा ये तो सारे ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी इज रादर मोर साइंस, लेकिन उसको हम ज्योग्राफिकल साइंस नहीं कहते। एकमात्र सब्जेक्ट मैंने देखा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिसमें पॉलिटिकल साइंस लगा है। व्हाट इज साइंस इन दिस? सर साइंस बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस अध्ययन का तरीका होता है। पुराने समय में जो पॉलिटिकल साइंस थी उसमें विद्वानों में बहुत मतभेद थे कि ये साइंस है या नहीं है, लेकिन जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पॉलिटिकल साइंस में दो चीज़ें आई। एक तो शिकागो यूनिवर्सिटी के चार्ल्स मरियम थे, उन्होंने इसके जो अध्ययन की पद्धति बदली। दूसरा सर इसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट को शामिल किया गया। तो साइंस के तौर पर हम परिकल्पनाएं कर सकते हैं, इसमें परीक्षण किया जा सकता है, इस बेस पे इसको साइंस कहा जाता है। अगर मैं सामान्य भाषा में पूछना चाहूँ आपसे, जैसे साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जी सर। और जिसको हम प्रयोग से और उसको पा सकें वो साइंस का विषय बन जाता है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है आपको, या अगर भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स को देखें, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि हम वो थ्योरी अप्लाई करें और उससे जो है परिणाम ऐसा ही है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिला है, 1 ऑक्सीजन, वो पानी बनेगा, H2। दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। सो इज देयर एनी थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, या कोई भी आपने पढ़ा हो चाणक्य से लेकर हॉब्स या रूसो या जिसको भी आप लगता हो, मैकियावेली, जिसको आपको लगता हो कि नहीं उनकी थ्योरी है और ये हमारे पॉलिटिक्स उसमें दिखती है, ये रियलिस्टिक है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, कोई भी चीज सोचो। सर जैसे चाणक्य का विदेश नीति का सिद्धांत है, वो आजकल जो हमारे भारत की जो यथार्थवादी विदेश नीति है उसमें देखने को मिलता है कि जैसे चाणक्य जी ने बोला था, न कश्चित कस्य चित्तय मित्रम न कश्चित कस्य चित्तय रिपु अर्थतस्तु निभत्यन्ते मित्राणि रिपवस्तः। अभी इसी बात पे कहते हैं कि आपने जब अर्नल्ड टैयनबी को अगर पढ़ा हो या सुना हो, उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया का उदय न्यूक्लियर बम से खतरनाक है। द राइज ऑफ वेस्ट एशिया इज डेंजरस देन न्यूक्लियर बम। इस टेक को, इस उनके कथन को आज के संदर्भ में देखो। कल शायद आपको पता भी होगा सीरिया और तुर्की का पेपर पढ़ा आपने? ये सर पेपर पढ़ा। फिर भी मैं इस पूरे कंसर्न को लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है कि पश्चिम एशिया का उदय नाभिकीय बम की खोज से खतरनाक है? सर आई एम सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा इसको। अच्छा, वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है? सर वेस्ट एशिया क्राइसिस बेसिकली 3-4 रीजंस की वजह से है। एक तो सर उसमें जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं वो, सेकंड नंबर निर्जातीय संघर्ष, थर्ड महाशक्तियों का हित। ये 3 मुख्य कारण हैं जो वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस है उसके लिए जिम्मेदार है सर। कल टर्की ने सीरिया पे कहा कि मैं अटैक करूंगा, सीरिया पर अटैक करने वाला है टर्की। जी सर। और कल पूरी न्यूज चैनल पर इसी की एनालिसिस चलती रही। ये सीरिया और टर्की के बीच का विवाद क्या है? सॉरी सर, थोड़ा सा इसको मैं नैरो कर दूं। जी सर। कुछ जो आपने उसमें क्षेत्रीय बताया, तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रजाति है जो आधी टर्की के साइड में है, कुछ सीरिया में है, कुछ इराक में भी है। अगर आप नक्शा देखो, कर्ड का नाम सुना है ना आपने? हाँ, कुर्द। हाँ, कुर्द। हाँ जी सर। हाँ तो जी सर। वो उससे रिलेटेड
प्रश्न है। तो आप जी सर। सो वर्ल्ड ऑर्डर अभी तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान एक नेक्सस बनता चला जा रहा है और कई चीजें ये कही जा रही है कि अनुच्छेद 370 को जो एबॉलिश किया गया नए तरीके से और हटाया गया, उसके बाद जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी वर्ल्ड ऑर्डर में, जो बहुत तेजी से इस प्राइम मिनिस्टर के तहत बढ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसे आधार दिखते जा रहे हैं जिससे इनके खिलाफ लोग हो रहे हैं और एक नेक्सस साफ दिखता है तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम उसको लेकर और फिर पूरी दुनिया की सहमति में थोड़े कमजोर हुए हैं अनुच्छेद 370 के एबॉलिशन पे? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के सर अपने हित ज़्यादा जिम्मेदार है। बहुत सारे राष्ट्रों, जैसे सर यूरोपीय पार्लियामेंट थी, उसमें प्रस्ताव आया था, तो जो बड़ी जो राष्ट्र थे, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, उन्होंने हमारा साथ दिया था। इवन यूरोपियन आयोग ने भी क्लियर स्टैंड किया था कि इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात सर, जो तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान है, वो सर इसके पीछे उनका एक इस्लामिक लीडर बनने की मंशा ज़्यादा दिखती है, ना कि कश्मीर के इशू पर उनके कोई बहुत ज़्यादा संवेदनाएं उनकी दिखती नहीं है। दूसरी बात, जो कश्मीर की लोकेशन है, अगर हम विदेश नीति के पर्सपेक्टिव से देखें, राष्ट्रीय हितों के तौर पर देखें, तो कश्मीर की लोकेशन सर 3 देशों से घिरी हुई है और कोई भी ऐसे लैंड जो 3 देशों से घिरा हो, जहाँ पे टसल चल रही हो, उसे सर अगर हम राष्ट्रीय हित के तौर पर उसमें 370 हटाए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। ये नहीं लगता कि हमने कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया? जो हमारा एक डोमेस्टिक मामला था या बायलैटरल मामला था, उसको लेकर अब तुर्की कई जगहों पे बोलने लगा है। पाकिस्तान में आपने सुना होगा, उसने कहा कि उसने इसकी तुलना ऐसी जगह से की और अपनी बात को बार बार कह रहा है हम प्रमोट करेंगे। एंड यू नो तुर्की इज वेरी गुड एलाई ऑफ नाटो। और इस तरह की चीज़ों में ऐसा नहीं लगता कि कुछ इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर शायद हम चूक गए? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। नाउ कम टू द डोमेस्टिक। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत टारगेट रखते हैं और एक समय देते हैं, जबकि हमारी जो एक हम भारतीय तत्व को देखें अगर, तो हमारी एक आदत है कि हम आराम परस्त लोग हैं और चीज़ों को आराम से करते हैं, हो जाएगा टाइप कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह से हम 70 साल से चले आ रहे थे। लेकिन दिस प्राइम मिनिस्टर कैन इन 2022 न्यू इंडिया, इन 2024 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक बेंचमार्क देते हैं और इतनी बड़ी एक गैप रखते हैं। आज 2.9 ट्रिलियन को कहते हैं कि केवल 5 सालों में जो है 5 ट्रिलियन हो जाएगा। इसी तरह आज 2020 में हम आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं और 2022 में न्यू इंडिया हो जाएगा। आपको नहीं लगता ये जो है जो मार्क है, बेंचमार्क, वो थोड़े रियलिस्टिक नहीं है, फिजिबल नहीं है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं सोचता। प्रधानमंत्री जी एक विजन लेके चल रहे हैं सर। उनके हिसाब से 2022 का न्यू इंडिया होगा, वो पुराने इंडिया से अलग होगा। आज सर मैं युवा हूँ, तो आज मेरा ये दायित्व है कि मुझे तेज चलना चाहिए। जो अगर कोई व्रत है तो वो अगर उतना तेज नहीं चल पा रहा है तो वो चीज़ जायज़ है। आज हमारा देश वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से चलता है। सबसे ज़्यादा युवापाती है, 65% लोग 35 साल के ऐसे कम हैं। तो निश्चित रूप से सर हमें अगर एफर्ट लगाना है, जो जिस प्रकार से चाइना डेवलप हुआ था, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट की थी, तो हमें तेज चलना पड़ेगा सर। अदरवाइज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनते टाइम नहीं लगेगा। अभी देखिए, ये सरकार कभी भी कोई पॉलिसी ला रही है, ज़्यादातर कोई भी बिल ला रही है, उसके बाद एक बड़ा अनरेस्ट आ रहा है विपक्ष की तरफ से ही नहीं, खासकर यूनिवर्सिटी और के जो युवा छात्र हैं वो भी सड़कों पर हैं। आप पूरी जगह देखिए, लगातार कोई भी स्कीम, कोई भी बात आ रही है, उसको एक साथ जोड़ते हुए और वो सड़क पे आ रहे हैं। इस तरह का अगर अनरेस्ट है, अगर इस तरह की सरकार के प्रति, जबकि बहुत मेजॉरिटी से सरकार चुनी गई, और आपने जैसा कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि फॉरेन फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रही है, IR अच्छा कर रही है, पर इस तरह से अनरेस्ट और लोग जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कमी क्या है? पॉलिसी मेकिंग में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, या कम्युनिकेशन में? सर कम्युनिकेशन या डायलॉग में कमी मुझे लगती है, क्योंकि सर जिस प्रकार से जो अभी के बिल लाए गए, उसमें सर सरकार को ये काम करना चाहिए था कि पहले जनता में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जो भी बिल के पॉलिसीज़ हैं वो किसी कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे। और हमारे देश में सर जो माइनॉरिटी है, तो एक मेजॉरिटी का दायित्व होता है कि माइनॉरिटी कभी भी अनसेफ फील नहीं करे। तो हमारा ये दायित्व था, सरकार का ये दायित्व होना चाहिए था कि वो एक ऐसा जागरूकता अभियान या फिर लोगों में अवेयरनेस कैंपेन या इस बात को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए कैंपेन चलाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, CAA जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जी सर, CAA के खिलाफ इतना हो रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी ड्राफ्टिंग अगर बदल दी गई होती, थोड़े टर्म बदल दिए गए होते, तो शायद इस तरह से रिएक्शन ना होता। आपको लगता है कि क्या हम इससे बेटर ड्राफ्ट बिल का ला सकते थे, जिससे ये सारी चीजें, यही सेम प्रोसेस रहता,
सारे प्रावधान यही रहते, पर ड्राफ्टिंग जो है कि किसको हम लाने जा रहे हैं, किसको नागरिकता दे रहे हैं, अगर कुछ चेंज होती, जरा सोचिए क्या ऐसा किया जा सकता था केवल ड्राफ्ट चेंज से कि इतना अनरेस्ट नहीं आता। कैन यू थिंक अबाउट दिस? सर मुझे लगता है ड्राफ्ट चेंज के बजाय जो डायलॉग है या बिल के बारे में सबसे पहले जो जनता में जो अवेयरनेस थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। ड्राफ्टिंग को लेकर सर मुझे इसमें ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आती, क्योंकि सर शरणार्थी हैं जो भी, जिसको सरकार रिलैक्सेशन देना चाह रही है नागरिकता के प्रावधानों में, सर मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो जिस माहौल में वो रह रहे हैं उनको देखा है सर। तो एक मानवीय कदम के रूप में ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है सर। और जैसे कि इसमें बहुत सारी अदर कम्युनिटीज़ को शामिल करने की बात थी, तो गवर्नमेंट ने ये बोला भी था कि हमने समय समय पे अदर कम्युनिटीज़ की नागरिकता के प्रावधान बनाए। जैसे सर 1971 के बाद में जो बांग्लादेशी नागरिकों की सिटीजन के लिए प्रावधान बनाए गए थे, या फिर 1962-12 में तमिलियंस पे जो उत्पीड़न हुआ था उसके बाद में। ये सारी बातों के बाद 2 दिन पहले राज्यसभा में 2 चाइल्ड नाम बिल पास प्रस्तावित हुआ। जी सर। अब सारी चीजें एक साथ लग रही हैं, एनसीआर, एनपीआर, सीएए, उसके बाद तुरंत 2 चाइल्ड नाम्स। तुम्हें लगता है कि फिर अगर इसके अगेंस्ट में हुआ, कुछ अगर ऐसा हुआ, क्या हमें फिर अवेयरनेस करके करना चाहिए था, या ये स्टेप सही है? सर मुझे लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस ज़्यादा अच्छा है। और सर 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ सर इसके। क्यों? क्योंकि सर देश में डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी बात तो, और जनता अगर जागरूक हो रही है, जैसे कि सर हमारे से पहली जनरेशन थी, वहाँ पे लोगों के बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन अभी की जनरेशन में जनरली 1 या 2 बच्चे ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे सर जो प्रोत्साहित उपागम है जो हमारी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी में, वो उसको लेके ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ या उसको ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ सर, एज़ कम्पेयर टू हम लोगों को बाइंड करें। जैसे कि सर राजस्थान में 2002 में एक 2 चाइल्ड पॉलिसी आई थी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। तो उसके बाद में सर जो वीमेन जो सेक्स रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि सर अगर 2 ही बच्चे होंगे तो जनरली लोग बेटे को प्रेफर करते थे, उससे कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी उसमें। ये 1 चाइल्ड नाम पे ज़्यादा आप जो बता रहे हैं, 1 चाइल्ड नाम पे ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, 2 चाइल्ड नाम पे तो खैर। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अभी जैसे ये सारी पॉलिसीज और इन सब चीज़ों पे जो डिस्कोर्स चल रहा है, अगर हम कोई एक नई चीज़ लाना चाहें, कोई एक नया बिल जो आप देखना चाहते हैं, कोई एक नया कानून, कोई एक नया चीज जो सरकार की तरफ से आए और जिससे सारे लोग ऐसी स्वीकारोक्ति के साथ उसे स्वीकारें, तो वो क्या हो सकता है? सर जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है उस पर कुछ बिल लाया जाना चाहिए। सांसदों की अपराधीकरण या सांसदों की अनुपस्थिति, इन सब चीज़ों से, क्योंकि सर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होगा तो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और इस पर पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये 2 चाइल्ड आर्मी क्यों, 1, 3, 4 क्यों नहीं? व्हाई 2 इन इंडिया? सर वैसे ऐसा मुझे इसका कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जनरली ये मानते हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म शायद इसलिए होगा। आपने शायद सुना होगा हम दो हमारे दो। जी सर। 3 क्यों नहीं भाई? आप बोल रहे थे कि मैं डेमोक्रेसी और उसमें बिलीव करता हूँ, तो 3 करो, 4 करो, 1 करो, भाई 2 मत। ये शुरू से आपने सुना होगा इंडिया। सर हो सकता है कि जो प्रतिस्थापन दर है वो 2.1 होती है, तो सर मैं 2 चाइल्ड नॉर्म से ही आगे बात पढ़ाता हूँ। इस बार फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो इन फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट आई है 2020-2021 के लिए। सॉरी सर, मैंने मतलब पूरी रिपोर्ट को वो थ्रू नहीं किया। उसमें एक टर्म यूज किया गया है TFR। जैसे 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। जी सर। उसके बाद होता है कि पहले जो सेंटर ने जितने पैसे देने हैं, उसके बाद जितने पैसे राज्यों के बीच बढ़ते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है और उसमें 6 पैरामीटर्स हैं। पहले हमने जितने फॉर्मूले देखे, पैरामीटर्स देखे, तो उसमें पॉपुलेशन में 1971 और 2011 को बेस बनाया जाता था। इस बार में उन्होंने 2011 और TFR को बेस बनाया है। ये TFR क्या होता है? सर TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या है सर कि कोई राज्य में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर मतलब 1000 जो लोग हैं उनको। इसका कंसेप्ट आप बता सकते हैं क्या है TFR का कंसेप्ट? सर TFR का कॉन्सेप्ट है कि एक महिला है, वो अपनी जो मतलब गर्भधारण की जो एज है, जनरली सर 25 से 45 वर्ष मानते हैं, उसमें सर कितने बच्चे पैदा करती है, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है सर। ओके, तो TFR का कम होना हमारे लिए फायदेमंद है या TFR का ज़्यादा होना फायदेमंद? सर एक सीमा तक कम होना फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा कम होना भी सर नुकसान है। ओके, दूसरा पॉइंट, आप चूँकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, कृषि आपका है, फार्म लोन वेवर का सर ने सवाल उठाया था।
हमने 2008 में देखा केंद्र सरकार ने राष्ट्र भर के लिए जो है फार्म लोन लेवल किया था, उसके बाद तमाम राज्य सरकारों ने किया। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, इन सब ने किया। लेकिन फार्म लोन को लेकर के किसानों की कर्ज माफी हमेशा से आलोचना का विषय है और लोग कहते हैं कि इससे फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी वजह क्या है? सर सबसे बड़ी वजह जो कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलने की है वो सर जो कर्ज माफी के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को मानता हूँ। सर ने एक सवाल उठाया था कोरोना वायरस के हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का। आपने इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म यूज किया है, असेंबल इन इंडिया। मेक इन इंडिया के साथ हम असेंबल इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारे लिए असेंबल इन इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर जो क्लस्टर डेवलपमेंट है उसको मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ। इसी सिलसिले में आपने एक टर्म सुना होगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये सुना है आपने? जी सर सुना। ये क्या होता है? सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सर मैं कंफर्म नहीं सर। चलिए मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ कि इस बजट में एक एक्शन प्लान खासतौर पर कृषि के लिए बना है, उसमें कितने बिंदु हैं? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। आपने एक अपनी संवेदनशीलता की बात करी थी। जी सर। तो एक इस देश में पिछले 70 वर्ष से लोगों के दिमाग में है, एक यंग लोगों के दिमाग में और ज़्यादा है, महिलाओं के दिमाग में रिजर्वेशन। आपका क्या इस पे विचार है? रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो किस फॉर्म में होना चाहिए? क्या जो फॉर्म चल रहा है इसी में चलना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है? महिलाओं का रिजर्वेशन एक्सेप्टेड है 33%, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसको हम कैसे कर सकते हैं? या इसके बारे में थोड़ा अपना विचार बताएंगे? जी सर। सर एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में मैं रिजर्वेशन का समर्थन करता हूँ, लेकिन सुधार के लिए भी मेरा मत है कि सुधार किए जाने चाहिए। जैसे कि सर इसमें कुछ जनरेशन का प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई ए ग्रेड में जॉब में कार्यरत है तो उसको 1 या 2 पीढ़ी के बाद में उसको रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। सर इसका सबसे बड़ा फायदा जो रिजर्वेशन क्लास में जो इलीट सबस्ट्रेटम के उदाहरण है कि उसके अंदर जो क्रीमी लेयर। जी सर। और एक इसमें सर हाँ जी सर क्रीमी लेयर के उदाहरण का भी मैं समर्थन करता हूँ कि एक सीमा के ऊपर रिजर्वेशन के ऊपर क्रीमी लेयर लगना चाहिए, ताकि जो उसके कोई क्लास के अंदर, जैसे सर एससी कम्युनिटी के अंदर जो कुछ कास्ट है जो ज़्यादा इसका लाभ ले रही है, एसटी के अंदर कुछ कास्ट है जो ज़्यादा लाभ ले रही है, उसके बजाय जो डिजर्विंग है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और विमेन आरक्षण पे सर मेरा मानना है कि डेफिनेटली सर इसको पास किया जाना चाहिए, क्योंकि सर अगर 50% पॉपुलेशन वीमेन की है तो उसमें सर अगर 13 या 14% ही हमारी संसद में बैठी है तो एक तरीके से हमारे पे सर अच्छी बात नहीं है। तो 33%। लेकिन कैसे करोगे इसको? और दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में आपका क्या विचार है? पॉजिटिव अफर्मेशन एक टर्म लोग यूज़ करते हैं कि रिजर्वेशन के बजाय पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर पॉजिटिव अफर्मेशन एक होलिस्टिक टर्म है जिसमें रिजर्वेशन उसका एक पार्ट है। पॉजिटिव अफर्मेशन में जो किसी भी कम्युनिटी के स्पेसिफिक योजना चलाई जाती है वो भी इसके अंदर आता है, जो प्रेफरेंस सिस्टम है वो भी इसके अंदर आता है। तो एक होलिस्टिक टर्म है जिसमें रिजर्वेशन पार्ट है। जो लिटरेचर का आपने बोला था लिंकेज, जो साहब ने आपसे प्रश्न किया था कि भाषा तो ठीक है आप जानते हो, आप अपना आप 3 भाषा 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात कर रहे थे, क्या कोई नॉर्थ ईस्ट या साउथ की कोई लैंग्वेज कभी आपने सीखने का प्रयास किया? सर अभी तक मुझे मौका नहीं मिला सर। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे की लैंग्वेज सबसे पहले सीखने को ट्राई करूँगा सर। मैं यहाँ पे राजस्थान में या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनके आसपास की लैंग्वेज सर मैं अच्छे से बोल लेता हूँ सर। मतलब डायलेक्ट आप जो हैं हिंदी और पंजाबी के जो डायलेक्ट्स हैं वो आप बोल लेते हो? हाँ जी सर। लेकिन एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, करीब 150 साल पहले एक कैनाल बनी थी आपके इलाके में, वो गंग कैनाल,
जी सर। उसके बाद उस इलाके में सिर्फ इंदिरा गांधी IGC आई, इंदिरा गांधी कैनाल। जी सर। कितना इनसे दोनों से उस क्षेत्र में फर्क पड़ा है सर? क्योंकि मुझे वहाँ कुछ लोग ऐसे बोले कि इससे मच्छर बहुत हो गए, हमारे यहाँ ये नुकसान होने लगा, सैलिनिटी बढ़ गई है। तो इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए कितना इससे फर्क पड़ा है? सर अगर एक स्टेटमेंट बोलो तो गंगानगर को सर एक तरीके से इजराइल ऑफ इंडिया बना दिया इसने, कि कहाँ मरुस्थल थे और जो हमारे जैसे गाँवों के नाम है सर वो भी नहर के मोग पे बने हुए हैं, जो जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है। तो एक तरीके से पूरी आबादी नहर पे बनी हुई है। पूरा का पूरा गंगानगर को धान का कटोरा माना जाता है, क्योंकि गेहूं उत्पादन में अव्वल है सर, सरसों उत्पादन में अव्वल है। तो ये सर इंदिरा गांधी और गंगा कैनाल के कारण ही संभव हो पाया। और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी, जैसे सर आपने बताया कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सैलिनिटी हो गया, तो सर वो उसके यूज़ के कारण हुआ है, जो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव के तौर पर सर विमेन, आप कैसे इसको इरेडिकेट कैसे करोगे, एड्रेस कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप मान लीजिए वहाँ पहुँच गए तो एड्रेस कैसे करोगे? सर एड्रेस का सबसे बड़ा जो है वो एक्सटेंशन सर्विसेज ही हैं, कि किसानों में किस तरीके से उनको पानी के यूज़ को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। और सर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, जैसे सर जो वाटर स्टोरेज की डिग्गी निर्माण है उस पर गवर्नमेंट 2 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है, फुहारा सिस्टम पे 70% सब्सिडी मिल रही है, ड्रिप सिस्टम पे 70% सब्सिडी मिल रही है। और बहुत सारे किसान सर हमारे जिले में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। जो डिग्गियाँ हैं, फुहारा सिस्टम है, बूंद बूंद ड्रिप पद्धति है, उस पर बहुत ज़्यादा किसान कार्य कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।